হ্যালো এভরিওয়ান, সো আমি পার্ট 3 নিয়ে চলে এসেছি। এখনও পর্যন্ত তোমরা কারা কারা পার্ট 1 আর 2টা দেখোনি তো তাড়াতাড়ি করে দেখে চলে এসো। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো লিঙ্কটা। কালকে আমরা পুরো দিনটা হরিদ্বারে ছিলাম, হরিদ্বারটা ঘুরেছি, আর আজকে আমরা ঋষিকেশ যাচ্ছি। সকাল সকালে বেরিয়ে পড়েছি রেডি হয়ে। আমাকে কেমন লাগছে নিশ্চয়ই জানিও কিন্তু কমেন্ট করে। আর এই যে আমার মা আর সবাই পেছনে আছে, আর এই যে আমার কাকিমণি আর মা দুজনেই, আমি দুজনকে ক্যামেরাতে নিয়েছি। ইভেন ওরা ভাবছে আমি ছবি তুলছি, কিন্তু ওদেরকে বললাম যে হাই করো, এটা ভিডিও হচ্ছে। তো তাই জন্য ওরা হাইও করলো তোমাদের সবাইকে। আর এটা আমার ছোট ভাইকে বললাম একটা ভিডিও করে দে, আমি আমার পুরো লুকটাও দেখাবে। ইভেন একটা আমি চাইছিলাম এরকম শর্ট যে করে দেবে আমার ভিডিওটা, তো ভাইকে বললাম, ও যেমন পেরেছে করেছে। আর এই ট্যুরিস্ট বাসটাতে করে আমরা যাব ঋষিকেশ আজকে। তো আমি তো ফুল এক্সাইটেড আছি দেখার জন্য। আর বাসে দেখো আমরা কতজন একসাথে এসছি ঘুরতে। বাসে উঠে যাবার পর সবার নিজের নিজের প্রবলেম, আমি এখানে বসবো, আমি বমি করি, আমি সেই করি। তো আর সব থেকে বেশি প্রবলেম ছিল ওই বাচ্চা দুটোর। আমাদের গ্রুপে যে দুটো বাচ্চা এসছে তার মধ্যে আমার ভাই আর একটা মাসির ছেলে আছে। তো যাই হোক, সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়েছে, আর আমিও ফার্স্টের দিকেই বসে পড়েছি ভিডিও করব তাই জন্য। আর আমার ভাই তো ড্রাইভারের কাছে বসেছে আরও ভালো করে ভিডিওটা নেওয়ার জন্য। তো এখানে সবাই একবার একবার করে ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে নিজের মতো করে দেখছিল, আর খুব হাসি ঠাট্টা মজা করতে করতে পুরো রাস্তাটাই গেছি। আর মা আর কাকিমণির দিকে যতবার ক্যামেরা ঘোরায় ওরা ততবার হাই করে, একবার করে করে। আমার খুব ভালো লাগে যদিও। আর এই যে আমার ভাই এখানে বসে আছে ড্রাইভারের কাছের সিটে, ভালো করে ভিডিও করবে বলেই। আর আমি জুম করে এই ভিডিওগুলো নিয়েছি যতটুকু পেরেছি। সেদিন রাস্তাতে যেতে যেতে স্কুটিটা এই গাড়িটাকে মেরে দিয়েছে হঠাৎ করে। তো দেখে নিয়ে আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম যে কারো কিছু হলো না তো। অনেক সময় হয়তো কারো ভুল থাকে না, হয়ে যায়, কিন্তু বেশিরভাগ ভুলটা আমাদেরই থাকে, কারণ আমাদের যেহেতু মাইন্ডটা থাকে না যে কোন দিক দিয়ে কি গাড়ি আসছে, কে আসছে যাচ্ছে। এইগুলো কোনো সময় হয়তো কেউ ফোনে কথা বলছে বা গান শুনছে গাড়ি চালানোর টাইমে, তাই জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হতেই থাকে। তো সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, একটু গাড়ি চালানোর সময় একটু ভালো করে মাইন্ডটা ওই রাস্তার দিকেই রেখো, যে কোন দিকে কোন গাড়ি আসছে না আসছে, তাহলেই ভালো থাকবে। তারপরে আমরা বাস থেকে নেমে নিয়ে অটো করেছিলাম, অটো করে নিয়ে ঋষিকেশ গেলাম। ঋষিকেশে এই যে পৌঁছে গেছি আমরা এই জায়গাটা। আর এই যে ফুচকার দোকানটা দেখছো, এখানে আমরা 30 টাকাতে 5টা ফুচকা খেয়েছি। আর খুবই জঘন্য, এত বাজে টেস্টের ফুচকা আমি কোথাও খাইনি, এখানেই ফার্স্ট। তারপরে ফুচকা টুচকা খাওয়ার পর এখানে আমরা নামলাম, নেমে নিয়ে একটু মাথায় জল নিলাম, বললো নিতে হয়, তাই জন্য মাথায় জল নিলাম। আর তারপরে এই জায়গাটা পুরোটা ঘুরে দেখলাম। আমার এই জায়গাটা এত ভালো লেগে গেছিলো যে আমি অনেক ছবি তুলেছি, ভাইকে দিয়ে এত ছবি তোলা করিয়েছি, মানে ভাবতে পারবে না। আর ছবি টবি দেখার জন্য তোমরা অবভিয়াসলি আমার ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করতে পারো, ডিভাইন সোল 9304 আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি। ওখানে আমি সমস্ত ছবি পোস্ট করি। আর এখানে এসে আমি রিলস বানাতে ভুলে গেছি। আমার প্রথম একটু ওই জন্য খারাপ লাগছিল যে এই রিলস বানানো হলো না। দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা এলাম এখানে রামঝুলা লক্ষ্মণ ঝুলা দেখার জন্য। তো এই যে বোটে করে মা কাকিমণিরা সবাই চলে গেলো, যেটা হাঁটতে পারবে না, আর আমরা হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছিলাম, কারণ আমাদের রামঝুলাটা আমাদের দেখার ইচ্ছে ছিল। লক্ষ্মণ ঝুলাটা দেখা হয়নি, কারণ বললো কাজ চলছে তাই জন্য বন্ধ আছে, কিছু একটা রিজন হচ্ছে আই থিঙ্ক, তাই জন্য আমাদের দেখা হয়নি ওটা। রামঝুলা দিয়ে আমরা হেঁটে গেছি। আর এত সুন্দর জায়গাটা যে কোনটা ক্যাপচার করব কোনটা করব না আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভিউটা এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওটা দেখে বুঝতেই পারবে। প্রত্যেকটা জায়গাতে এত ছবি তুলেছি বলে বোঝাতে পারবো না। আসলে এমনি মনে হচ্ছিল যে এই জায়গাটা ছবি তুলে যদি না ভালো আসে আরেকটা তুলে নিই, কারণ পোস্ট করব, সেই জন্য একটা ভালো ছবি তো চাই। তো ওই জন্য অনেকগুলো করে ছবি তুলে রাখছিলাম, যাতে পোস্ট করার সময় এইটা আফসোস না করি আমরা যে এই মা ছবিটা কেমন চলে এলো, পোস্ট করতে পারবো না, তাই না? তাই জন্য আমি আর ভাই যত পেরেছি ছবি তুলে নিয়েছি। আর প্রচণ্ড বিরক্ত হচ্ছিলো মা কাকিমণিরা, কারণ যেহেতু আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম ছবি তোলার জন্য, আর ওদের ওই জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল আমাদের জন্য। তো ওই জন্য একটু যাই হোক বিরক্ত হচ্ছিলো, কিন্তু ঠিক আছে, আমরা ওটা একদম ইগনোর মেরে দিয়েছি, কারণ আমাদেরকে তো ছবি তুলতেই হবে। তারপর আমরা এই মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। আর এই মন্দিরের ভেতরে আমার সব থেকে ভালো লেগেছে এই শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের রথটা।
এটা আমি আরেকবার লাস্টে খুব ভালো করে নিলাম, কারণ আমার সত্যি খুব ভালো লাগছিল, খুব ভালো করে বানিয়েছে। এখান থেকে আমরা বেরিয়ে গেলাম শিবজির মন্দিরে, আর যিনি আমাদেরকে গাইড করছিলেন উনি নিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানে শিবজির মন্দিরটা দেখিয়ে নিয়ে আমাদেরকে সবাইকে বসালেন এবং এখানের যে হিস্ট্রিটা সেটা উনি এক্সপ্লেন করছিলেন। আমি কিছুটা ক্যাপচার করেছি, তোমরা সবাই শুনে নাও। छोटा शहर पड़ेगा ऋषिकेश, वो पड़ता है जिला देहरादून। 3 जिले को मिला के ऋषिकेश बोलते हैं। ये सामने जो पर्वत देख रहे हैं, पर्वत का नाम है मणिकूट। आप लोग बुक में पढ़े हैं मणिकूट। इधर जो पर्वत है इसको बोलते हैं शिवालिक पर्वत। शिवालिक बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाएंगे तो पड़ता है हिमालय। अभी आप लोग झूले में चल के आए, सबसे बड़ा झूला है राम झूला। ये 1985 में बनना शुरू हुआ, 1985 में। 1986 में बनके तैयार हुआ, 1986 में। राम झूले की लंबाई 650 फुट है, 650 फुट है। चौड़ाई जो है 7 फुट है। राम झूले में लागत है 1 करोड़ 2 लाख रुपया। रतन प्रकाश जी महाराज, अब बाबा जी रहने वाले थे सिंध से। आप लोग अंदर गए होंगे, कांच का मंदिर होगा, कांच का, शीशे का, काला कम्बल ओढ़े होंगे। 2 बाबा जी होंगे। इधर वाले बाबा जी का नाम विशोदानंद जी और उधर वाले बाबा जी का नाम आत्म प्रकाश जी महाराज। बता रहा हूँ। इस घाट का नाम है स्वर्ग आश्रम घाट। आगे जाएंगे गीतावन घाट, उसके आगे जाएंगे परमार्थ निकेतन घाट। तो उस घाट का नाम है त्रिवेणी घाट। 3 नदियों का संगम नहीं है, वो घाट का नाम है त्रिवेणी घाट। তোমরাও শিবজির দর্শন করে নাও সবাই, আর তোমাদের মনের ইচ্ছে পূরণ করুক শিবা। তারপর এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি গীতা ভবন। আর গীতা ভবনের প্রতিটা দেওয়ালেই দেখো গীতাই লেখা আছে। এখানে একটা লেখা দেখতে পেয়েছিলাম যেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল, তোমরা পজ করে পড়ে নিতে পারো যাদের ইচ্ছে। তারপরে আমাদেরকে যে গাইড করছিলেন তিনি আরো এখানে কিছু কাহিনী বলছিলেন। इसलिए इसको गीतावन बोलते हैं। ये गीतावन 1 नंबर है, आगे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। इसका 7 भवन है। दर्शन खाली 1 में है, बाकी जो भवन है सभी में रूम है, कमरा, किचन, बरामदा। यहाँ पे टोटल 1250 रूम्स है। फ्री सेवा, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है। रूम 1-2 दिन का नहीं मिलेगा, 7 डे, 15 डे, 1 मंथ के लिए मिलेगा। आप अंदर भोजन बनाएंगे, गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन मिलेगा। बाहर से भोजन कर सकते हैं, अंदर भोजन लेते हैं, 50 रुपया थाली भोजन मिलता है। ये गोरखपुर गीता प्रेस वालों का है। यहाँ के स्वामी जी थे राम सुखदास जी, जो राजस्थान से रहने वाले थे। ये सबसे बड़ा पेड़ देख रहे हैं, ये कदम का पेड़ है। कदम के पेड़ पे कृष्ण भगवान बैठ के बांसुरी भी जाते थे, सभी लोग प्रणाम करेंगे। कदम का पेड़। ये सामने 2 पेड़ देख रहे हैं, छोटा पत्ता, ये चंदन का पेड़ है, लाल चंदन। चंदन 3 प्रकार का होता है जी, छोटा पत्ता। चंदन 3 प्रकार का, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। सामने दर्शन है लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण जानकी। ऊपर में कृष्ण जी का लीला देखेंगे। उधर सामने कोने पे जाएंगे, ओम नमः शिवाय बोलेंगे। एक पन्ने में पूरी गीता है, एक पेज में पूरा भागवत गीता है। 2 मिनट यहाँ विश्राम करेंगे क्योंकि यहाँ पे गीता का पाठ चलता है, ठीक है। फिर मैं रुद्राक्ष का पेड़ दिखाऊंगा, उसमें पूरा गीता एक पन्ने में लिखा है, एक पन्ने में पूरी भागवत गीता। उधर में शिव फैमिली, लक्ष्मी नारायण दर्शन, कृष्ण जी का लीला दर्शन करके आइए, जाइए। चप्पल जूता निकालो। সো চলো আমার সাথে সাথে তোমরা দর্শন করে নাও। এটা হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, মূর্তিটা খুবই সুন্দর। আর এবার তোমাদেরকে এই ভিতরের মন্দিরটা আমি ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো প্রতিটা দেওয়ালে কিন্তু কিছু না কিছু লেখা আছে। এতগুলো লেখা আমি সত্যি পড়িনি, জাস্ট ভিডিওটা করেছিলাম। যাদের পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে পজ করে তোমরা পড়ে নিতে পারো। আমার ওইখানে দাঁড়িয়ে থেকে এতগুলো পড়া হয়নি। তারপরে এটা আরেকটা শিবার মন্দির আছে। তারপর এই মন্দির থেকে বেরিয়ে নিয়ে আবার গেলাম। बस 5 मिनट थोड़ा ध्यान देंगे, 5 मिनट सब लोग आ जाइए। गंगे में जाके ये सामने जो पर्वत देख रहे हैं, पर्वत का नाम है मणिकूट। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो उसमें 14 रत्न निकला था, 14। तो जो 13 रत्न था वो देवताओं ने ले लिया था। एक रत्न था 20 को कोई नहीं लिया। 20 को शंकर जी इस पर्वत पे पिए, तो उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए बोलते हैं नीलकंठ महादेव। 23 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नीलकंठ महादेव जी का प्राचीन दर्शन है। 4 बूंद अमृत गिरा, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, ये चारों जगह पे कुंभ मेला लगता है 12 साल में। चारों धरती को पवित्र धरती माना गया। हरिद्वार से 6 किलोमीटर आगे जाएंगे, नाम पड़ता है कनखल। तो वहाँ पे राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे थे, बहुत भारी यज्ञ था। सभी देवताओं को बुलाए थे, शंकर जी को नहीं बुलाए थे। शंकर जी की पत्नी जिद की, हे नाथ मैं जाऊंगा, मेरे पिता क्या यज्ञ हो रहा है। शंकर जी बोले नहीं जाना है। शंकर जी की पत्नी बोले नहीं मैं जाऊंगा। क्या नाम था? उसी का नाम था सती। जब सती जी हरिद्वार पहुंचे, उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। शंकर जी का घनघोर अपमान हुआ, सती जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां पे था अग्निकुंड, उसमें सती हुए। जब सती हुए, थोड़ा ध्यान देना, जब सती हुए तो शंकर भगवान थे हिमालय में, अपने केस के एक बाल को निकाले, जमीन पे पटके वीरभद्र जी को पैदा किए। वीरभद्र जी हिमालय से हरिद्वार गए, राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस कर दिए, उनका सिर काट दिए।
उस समय उनको बकरे का सिर लगाया गया। उस समय शंकर भगवान रुद्र अवतार लिए और हिमालय से हरिद्वार पहुंचे, सती जी को अपने गोद में लिए, अब गोद में लेकर तांडव करने लगे। तो विष्णु भगवान सोचे इनका क्रोध कैसे शांत होगा, अपना चक्र सुदर्शन छोड़े और सती जी के टुकड़े किए। कितने टुकड़े? 51 टुकड़े, 51 टुकड़े। जो सबसे पहला टुकड़ा गिरा वो गिरा आसाम, कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। दूसरा टुकड़ा हिमाचल, पार्वती जी के नाम से जाना जाता है। तीसरा टुकड़ा शिवालिक पर्वत, कुंजापुरी माता का मंदिर है 23 किलोमीटर आगे। चौथा टुकड़ा पाकिस्तान, हिंगलाज माता का मंदिर है। जो अंग जहाँ पे गिरा उसी अंग का पूजा होती है। 51 शक्तिपीठ देवी उत्पन्न हुए। उसी समय भगवान शिव जी ने रुद्र अवतार लिए और तीसरी नेत्र से आंसू गिरा तो मानव कल्याण के लिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुआ। रुद्र माने भगवान शिव, अक्षमी आंसू। रुद्राक्ष होता है एक मुखी से 14 मुखी तक। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल होता है, फल में सीधी लाइन होती है, जितनी लाइन होती है उतने मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। लेकिन 2 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रत्येक साल फल आता है। एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है, 12 साल में एक पेड़ में एक आता है। भगवान शिव जी का रूप होता है, एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है। आप लोग को 1 करोड़ में एक मुखी रुद्राक्ष कोई दे तो मत लेना, जहां मिलेगा फ्रॉड मिलेगा। जो चीज 12 साल में एक पेड़ में एक असंभव नहीं मिल सकता है, एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता। एक मुखी की आड़ में लोग बेचते हैं चंद्रमा का, काजू प्रकार का, प्लास्टिक का, फाइबर का। रुद्राक्ष को तोड़ेंगे बीज निकलेगा, फाइबर को तोड़ेंगे बीज नहीं निकलेगा। रुद्राक्ष का पहचान है, जब उसको तोड़ेंगे तो बीज निकलेगा। एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल के राजा भेंट किए आदि गुरु शंकराचार्य जी को, तब से दर्शन के लिए रखा है। उत्तरांचल रत्न निगम, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। आप एक मुखी रुद्राक्ष को दोनों से टच करेंगे, माथे पे लगाएंगे, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करने से जाने अनजाने में, भूल चूक में कोई पाप, कोई मिस्टेक होता है, पापों का प्रायश्चित होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जो हम लोग गले में रुद्राक्ष पहनते हैं वो पहनते हैं 5 मुखी। लोग रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? शिव पुराण में लिखा है जो आया हो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो जन्म लिया उसको मरना है। लेकिन जिनके गले में रुद्राक्ष का माला है कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए लोग 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष है कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है। तो सबसे भारी मात्रा में निकलता है 5 मुखी रुद्राक्ष। बाबा रामदेव बताते हैं हिमालय का रुद्राक्ष आपके घर में, आप लोग मेडिसिन यूज करिए। तांबे का लोटा लीजिए, रात में जल भरिए, जल में माला डाल दीजिए, सुबह जल पीजिए। परिवार में किसी को भी जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट संबंधी बीमारी, गैस, अस्थमा, डायबिटीज, शुगर 3 महीने में जड़ से समाप्त करता है। आप लोग नाम सुने होंगे स्फटिक, नाम सुने? स्फटिक ठंडा होता है। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 12 महीने बर्फ गिरता है। जो कच्चा बर्फ होता है वो सूर्य के प्रकाश से पिघल करके गंगा जी में आता है। गंगा जी का पानी ठंडा होता है और जिस बर्फ को हवा धूप नहीं मिलता है पत्थर का रूप लेता है, उसी पत्थर को स्फटिक बोलते हैं। कैसे पहचान करेंगे ओरिजिनल स्फटिक है? 2 स्फटिक को लेके आपस में रफ करेंगे तो फायर आएगा, चिंगारी आएगा। 80 होगा तो स्पार्क आएगा, चिंगारी। स्फटिक ठंडा होता है। बहुत लोग धूप में नहीं जा सकते हैं, काफी लंबा समय से माइग्रेन की दिक्कत है, माइग्रेन, हाफ सिर में दर्द, तो उसके लिए रामबाण औषधि है। घर में टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, उनके लिए रामबाण औषधि है स्फटिक माला। घर में छोटे छोटे बालक हैं, पढ़ाई नहीं करते, किसी काना नहीं मानते, बच्चा पढ़ाई करके भूल जाता है, लड़के को काले धागे में, लड़की को लाल धागे में पहनाते हैं। ये पहाड़ों में खेती नहीं होता है, ये पहाड़ों में बड़े बड़े वृक्ष निकलता है, पन्ना, पुखराज, नीलम, मारी। आप लोग के सिटी में बहुत कीमत है। आपके कलकत्ता में 2 डाकू हैं, बताऊं, एमपी ज्वेलर्स, पीसी चंद ज्वेलर्स। उनके नौकर लोग इधर आते हैं, यहाँ से पन्ना, पुखराज, नीलम लेके जाते हैं, वहाँ वजन करके बहुत भाव में बेचते हैं। यहाँ पे रत्नों का कोई कीमत नहीं है। यहाँ की सरकार तैयार करती है 9 जेम्स नवरत्न माला, वो केवल मेकिंग प्राइस गवर्नमेंट लेती है। आप लोग का मकान है बहुत सुंदर है सर, ध्यान देंगे, आप लोग का मकान है बहुत सुंदर है, दरवाजा गलत दिशा में, बेडरूम गलत दिशा में, किचन गलत दिशा में, पूजा स्थान गलत दिशा में, वो घर संपूर्ण नहीं है। उस घर में कष्ट, परेशानी, दुख, बीमारी लगा रहता है। एक परेशानी सिर से हटेगा, दूसरा परेशानी सिर पे बैठ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। इन दोषों को निवारण करता है श्रीयंत्र। पूजा घर में रखते हैं लाल कपड़े के ऊपर में। एक बार प्रेम से बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। अब मैं लास्ट दर्शन कराना चला हूँ। लास्ट एक मुखी रुद्राक्ष, ओनली फॉर दर्शन, नॉट फॉर सेल। एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिलेगा नहीं, दर्शन जानकारी फ्री होगा। आप वहां से असली 5 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं, स्फटिक ले सकते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तरांचल जी। তো তোমরা বলো তোমাদের গীতা ভবনটা কেমন লাগলো? আমার তো ভালো লেগেছে, কারণ একটা শান্ত পরিবেশ, খুব সুন্দর। আমার শান্ত পরিবেশ এমনিতেই খুবই ভালো লাগে আর কি। তো আমার ভালো লেগেছে, তোমরা জানিও কমেন্ট করে তোমাদের কেমন লাগলো পুরো গীতা ভবনটা। আর এখান থেকে বেরিয়ে ইনি নিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরকে ওই দোকানে, যে দোকানে রুদ্রাক্ষ, একমুখী রুদ্রাক্ষটা দেখাবেন বললেন। এটাই হচ্ছে ওই দোকানটা। আর এখানে রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায় একমুখী, 5 মুখী, মানে একমুখীটা আর কি বিক্রির জন্য নয়, ওটা জাস্ট দর্শনের জন্য। বাকি 5 মুখী, 7 মুখী যেরকম নিতে চাও পেয়ে যাবে। এখানে বলে নাকি অরিজিনাল, এখানে সব কিছু, অনেক কিছু দেখার পর যার যেটা ইচ্ছে হয়েছিল নিয়েছিল। তারপর ওখান থেকে গিয়ে আমরা লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চে আমার এত খিদে পেয়েছিল যে আমি পুরোটা নিতে পারিনি, দিয়ে খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলাম আরেকটা মন্দিরে। এই মন্দিরটা হলো শীতলা মায়ের মন্দির, এটা সতী মায়ের জন্মস্থানও বলা হয়। ওপরে লেখাও আছে
লাগছে এটাই। সো এখানে আমরা বাইরের থেকেই প্রণাম করলাম, কারণ গেট তো বন্ধ ছিল। তারপরে এই লেফট সাইড করে আরেকটা মন্দির আছে, এটার ভেতরে যাব আর তোমাদেরকে ভেতরের ভিউটা দেখাচ্ছি কি কি ঠাকুর আছে এখানে। এই যে কালী মাতার আছে, শিবজির আছে, আরও রাম সীতার আছে, রাধাকৃষ্ণর আছে, সবের আছে। আর এই মন্দিরের ঠিক অপোজিটেই একটা ছোট্ট বাজার আছে, যেখানে ওই চুড়ি, মালা, পূজার সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছিল, ধূপ ধুনো এইসবগুলো। সো আজকের পুরো দিনটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা নিশ্চয়ই জানিও। এর আগে দুটো পার্ট অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি, তোমরা যারা দেখোনি দেখে চলে এসো। আরেকটা পার্ট বাকি আছে, যেটা আমি খুব শীঘ্রই আনছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। হর হর মহাদেব।